امین کہتا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک تقریباً 38 یا 39 سال ہے۔ یہ 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی ہیں، مالدار خاتون ہیں، ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ اب خاتون تو تجارت کر نہیں سکتی۔ اب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا کہ جو خدیجہ کا مال لے جائے اور پھر جا کر اس کی تجارت کرے۔ تجارت کرنے کے بعد نفع آدھا خدیجہ کا ہوگا، آدھا تجارت کرنے والے کا ہوگا۔ اب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شخص بھی مال لے جاتا تھا دھوکہ اور چکر دیتا تھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی پریشان تھیں۔ اب سیدہ خدیجہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سامنے تھی۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 23 یا 24 سال اتنی ہے، اور آپ علیہ السلام کا مکہ کی دھرتی پہ ہر ایک کی زبان پر یہ الفاظ تھے، محمد جیسا صادق ہم نے نہیں دیکھا، محمد جیسا امین ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ کی امانت، دیانت، صداقت کے مکہ کی دھرتی پہ ڈنکے بج رہے تھے۔ چھوٹے کی زبان پہ بھی یہی ہے کہ محمد جیسا صادق اور امین ہم نے نہیں دیکھا، بڑے کی زبان پہ بھی یہی ہے، محمد جیسا صادق اور امین ہم نے نہیں دیکھا۔ قریشی سردار ہے یا اس کا ماتحت ہے، ہر ایک کی زبان پہ یہی الفاظ ہیں، محمد جیسا صادق امین ہم نے نہیں دیکھا۔ اب سیدہ خدیجہ کے سامنے یہ واقعات بھی تھے کہ یہی محمد ہے، ایک آدمی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تجارتی سامان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی سامان کو دیکھ کر اس سامان کو پسند کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس سامان کے بارے میں معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کو وہ مال سامان پسند آیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ بات طے ہو گئی کہ اتنے کا مال میں خریدتا ہوں، لیکن اس وقت اس آدمی کے پاس پیسے نہیں۔ کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، میں گھر جا رہا ہوں اور اپنا مال پیسے لے کر آ رہا ہوں، آپ کو پیسے دوں گا، مال اٹھا کے چلا جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کے پاس اور بھی خریدنے والے آئے سامان، حضور نے وہ سامان کسی کو نہیں دیا۔ اب وہ پیسے لینے والا جو گیا اپنے گھر میں پیسے لینے کے لیے، وہ نسیان کا مریض تھا، اسے بات بھول گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کو جو آپ نے بیچ دیا اس کی حفاظت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ضرورت گھر پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر واپس تشریف لے جا آتے ہیں۔ یہ سارے واقعات حضرت خدیجہ کے سامنے تھے۔ 3 دن کے بعد جب وہ آدمی اسی راستے سے گزرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی کہ سامان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ خریدنے والا سامان جس آدمی نے خریدا اسے یاد آ گیا، اوہو 3 دن تو پہلے محمد کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک سامان کے بارے میں تجارت ہوئی تھی، میں تو پیسے لینے جانا تھا، یہ محمد تو ابھی تک سامان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو کہنے لگا، اے محمد یہ اس دن سے آپ بیٹھے ہو؟ حضور نے فرمایا، ہاں میں وعدے کا وفا کرنے والا ہوں، میری وفاؤں کو بھی دیکھ اور اپنی جفاؤں کو بھی دیکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سارے واقعات سیدہ خدیجہ کے سامنے تھیں، اور یہ حضرت سیدہ خدیجہ یہ واقعہ بھی دیکھ چکی تھی اور سن چکی تھی کہ محمد کا ایک آدمی کے ساتھ تجارتی معاملہ اختلاف ہوا، اور اس اختلاف پر وہ سامنے والا کہتا ہے لات منات عزا کی قسم اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، فرمایا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ تو تورات انجیل کے حافظ اور قاری کے پاس گئے، یہ وجہ کیا ہے کہ یہ لات منات عزا کی قسم نہیں اٹھاتا، یہ کہتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ تو وہ راہب، وہ عالم کیا کہتا ہے، میری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ آخر الزمان نبی نبوت کے اعلان سے پہلے لات منات عزا کسی کی قسم نہیں اٹھائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہ قسم اٹھا نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے تھیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے عرض کیا 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، آپ علیہ السلام کو جو القابات ملے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے مکہ کی دھرتی پہ عزت ملی، یہ سارے واقعات سیدہ خدیجہ کے سامنے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آئیں
اور میرے सामान को आप ले जाए, तिजारत की गर्ज से तिजारत करें, जो नफा मिलेगा आधा नफा आपका होगा आधा मेरा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भर ली, हुजूर इसके लिए तैयार हो गए। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तिजारती सामान को उठाकर मुल्क शाम की तरफ जा रहे हैं। 24-25 साल उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है। सैयदा खदीजा की 39 या 40 साल इतनी उम्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामान लेकर जा रहे हैं तो खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को साथ भेजा, कहा इस मोहम्मद के साथ ताउन करना, इसकी मदद करना, इसके साथ तुमने चलना है। मैंने इनका बड़ा चर्चा सुना है और इनकी तिजारत जैसे ये तिजारत करते हैं, आज तक इस जैसी किसी ने तिजारत नहीं की। वजह क्या है? मैंने ये चर्चा भी सुना है, जिस वक्त ये तिजारती सामान तिजारत मंडी के अंदर लेकर जाते हैं, सामान उस वक्त इन्होंने फैलाया, एक और सामान थोड़ी देर के बाद वो बिक जाता है। बड़े बड़े ताजरों का सामान मंडी के अंदर वैसे का वैसे पड़ा होता है। वजह क्या है? आखिर ये कि इसकी तिजारत कैसी है कि इस तिजारत से इतना बड़ा नफा भी ये कमा लेते हैं और जल्दी सामान भी बिक जाता है। ये सारे हालात आपने देखने हैं। देखने के बाद फिर आकर मुझे आपने बताना है। अब मैसरा साथ चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफर करता है। जिस वक्त तिजारत करके ये मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस आता है तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस तिजारती सफर की रुएदाद सुनाता है। एक एक वाकया उसने सुनाया। सैयदा खदीजा से कहता है कि ऐ खदीजा, मैं आपको क्या बताऊं, मोहम्मद की तिजारत कैसी तिजारत है। पहली बात तो यह है कि मैंने इनके साथ सफर किया, इनके साथ सफर करने वाला कभी थकावट महसूस नहीं करता। अल्लाह की कसम, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने मैसरा ये कहते हैं, मुझे थकान नहीं हुई, थकावट मैंने जर्रा भर भी महसूस नहीं की। और मोहम्मद के साथ मैंने जब सफर किया तो मैं क्या देखता हूं, सख्त गर्मी और सख्त धूप है। मोहम्मद के सर पे बादल का एक टुकड़ा साया कर रहा है। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। खदीजा, मैं आगे क्या बताऊं, जिस दरख्त के सामने से गुजरते थे तो वो दरख्त मोहम्मद के सामने झुक जाया करता था। जिस पहाड़ के सामने से गुजरते थे तो पहाड़ों से गैब से कोई आवाज आती थी, मोहम्मद उनकी आवाज का जवाब देते थे। ऐ खदीजा, मैं आपको क्या बताऊं कि मोहम्मद को रास्ते में 2-3 जगह पे क़ज़ाए हाजत की नौबत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द झाड़ियां जमा हो जाती हैं। ये फारिग हुए, झाड़ियां अपनी जगह पे वापस चली गईं। मैं आगे क्या बताऊं आपको। जिस वक्त हम मंडी के अंदर पहुंचे, मंडी में पहुंचने के अंदर 2 बातें हुई। तिजारत की इससे अगली बात, हुजूर अलैहिस्सलाम करते ही नहीं थे, सामान वहां फैला दिया। सामान फैलाने के बाद खुश्क सामान एक तरफ रख दिया, गीला सामान एक तरफ रख दिया। फरमाया ये खुश्क गंदुम है, ये गीली गंदुम है, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है। पहले तिजारती लोग मक्के के पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनका सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। और मोहम्मद ने जिस वक्त सामान रखा, सामान को फैलाया, उसी वक्त गाहक आए, सामान लेकर चले गए। कहते हैं कि जिस वक्त सामान बेचने के बाद तिजारती सामान को हमने बेचा तो उस वक्त तिजारतों की एक आदत थी, तिजारती सामान बेचने के बाद सामने एक बहुत बड़ा माबद खाना था। उस माबद खाने के अंदर एक राहिब था जिसका नाम नस्तूरा था और वो बड़ा मुस्तजाबुद दावत था। लोग उसके पास जाते थे और दुआओं के लिए उससे हाथ उठवाते थे। वो जब दुआ करता था तो उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते थे। तो उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मैं उनके पास पहुंचा हूं। हम माबद खाने के अंदर दाखिल नहीं हुए। सामने एक दरख्त है, दरख्त के साथ हमने सवारी बांधी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां लेट जाते हैं। कहते हैं वो सलाम की आंख मुबारक लग गई। इतने के अंदर वो नस्तूरा, वो राहिब अपने माबद खाने से बाहर निकला, आकर मुझसे पूछता है इस आदमी का नाम क्या है। मैंने कहा इसका नाम मोहम्मद है। इसके वालिद का नाम क्या है? कहते हैं मैसरा के मैं इनके वालिद को नहीं जानता। अच्छा, कहां से आए हो? जवाब मिला मक्का से आया हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक की तलियों को देखने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के तलवों को देखने के बाद फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पिशानी मुबारक को देखा। देखने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक का भी ये बोसा लेते हैं, हुजूर की पिशानी का भी इसने बोसा लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख मुबारक खुल गई, हुजूर सीधे होकर बैठ गए। अब यही नस्तूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है आपका नाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम बताया। पूछा तुम्हारे बाप का नाम क्या है?
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला है। पूछा आपके दादा का नाम क्या है? फरमाया मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। उसने पूछा अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम? जवाब दिया हाशिम। अच्छा ये बताओ कहां से आए हो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मक्का से आया हूं। अच्छा आप यतीम हैं? हुजूर ने फरमाया हाँ, मेरे आने से पहले मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब उसने ये बात सुनी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहने लगा आपसे एक दरखास्त करता हूं, अगर आप इस मेरी दरखास्त को कबूल कर लें, ये आपके कंधे मुबारक के जो ऊपर कपड़ा है, जरा इस कपड़े को आप हटाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे मुबारक का कपड़ा हटाया। जिस वक्त उसने मोहरे नबुव्वत देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुव्वत का बोसा लिया और कहने लगा अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह आपके सर पे नबुव्वत का ताज सजाना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा आपको कैसे पता चला? अल्लाह मेरे सर पे नबुव्वत का ताज सजाना चाहते हैं, अल्लाह मुझे नबी बनाना चाहते हैं। कहता है कि इस जगह पर जिस दरख्त के साथ आपने सवारी बांधी है, इस दरख्त के साथ सवारी सिर्फ अल्लाह का नबी बांध सकता है। आपसे पहले यहां हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सवारी बांधी थी और आप हजरत ईसा ने जब सवारी बांधी, उनकी सवारी बांधने के बाद फिर हमने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा और अपने उलमा से सुना कि यहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नबी ही सवारी बांध सकता है। और आखिर ज़मान नबी के आने की खुशखबरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे के गए हैं। या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? ऐ बनी इसराइल सुनो, मेरे बाद एक ऐसा नबी आएगा जिसका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। आपका नाम आसमानों पे अहमद है, जमीन पे आपका नाम मोहम्मद है। अहमद का माना है जो सबसे ज्यादा अपने रब की तारीफ करे, मोहम्मद का माना है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। रूह जमीन पर सबसे ज्यादा जिस हस्ती की तारीफ हुई उसे मोहम्मद कहते हैं और जिसने रूह जमीन पर सबसे ज्यादा अपने रब की तारीफ की उसे अहमद कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा कि मेरी किताबें ये बताती हैं कि यहाँ नबी के अलावा कोई और सवारी नहीं बांध सकता। आपने यहाँ सवारी बांधी है तो आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हमारे आबाओ अजदाद, ये सामने माबद खाना देख रहे हो, ये माबद खाना नहीं है, ये इंतजार की जगह है कि सारे हमारे आबाओ अजदाद ये इंतजार करते आए। यहाँ उन्होंने रिहाइश ठिकाना बना लिया कि हम इंतजार करें, देखें तो सही वो कौन है कि जो यहाँ सवारी बांधे और आखिर ज़मान नबी बने। तो हमारे आबाओ अजदाद देखते आए, उन्हें कोई नजर नहीं आया। अल्लाह ने मुझे ये सआदत दी और मैं खुशकिस्मत हूं कि आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आपने सवारी बांधी और आपने यहाँ आराम किया। आपके सर पे अल्लाह नबुव्वत का ताज सजाना चाहते हैं। ऐ मोहम्मद सुनो, अगर मैं जिंदा रहा, आपने नबुव्वत का ऐलान किया तो मैं आपकी नबुव्वत की तस्दीक करूंगा, और अगर मैं इस दुनिया में न रहा, आपने नबुव्वत का ऐलान कर दिया तो मैं आपकी नबुव्वत की आज तस्दीक करता हूं, दामन नबुव्वत से वाबस्ता होना चाहता हूं। ये सारे वाक़ियात मैसरा हजरत सैयदा खदीजा के सामने रखती है। हजरत सैयदा खदीजा के अंदर एक वलवला, एक शौक हजरत खदीजा के अंदर पैदा हुआ। वह ऐसा अजीब ताजर तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब नफा तय हुआ था, आधा मैं आपको दूंगी, आधा मैं अपने पास रखूंगी, माल मेरा होगा। अब सैयदा खदीजा आधे से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफा देना चाहती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफा लेने से इनकार कर दिया। फरमाया जो मैंने आपके साथ तय किया, जो मेरे साथ आपने तय किया, उससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता। सैयदा खदीजा ने वो नफा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। मैंने पहले भी अर्ज किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जनाब अबू तालिब की किफालत के अंदर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी कमाई होती वो सारी जनाब अबू तालिब की खिदमत में पेश कर देते थे। और जनाब अबू तालिब के बारे में आता है ये करीरुल माल थे, कसीरुल अय्याल थे, औलाद ज्यादा थी, माल इनके पास कम था और एक टांग से ये माजूर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी तिजारती कमाई जनाब अबू तालिब की खिदमत में पेश कर देते थे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 24 या 25 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी को पहुंच चुके थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा जनाब अबू तालिब से दरखास्त की, ऐ मेरे चचा, आपकी बेटी
उम्मे हानी जवान हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि मेरा निकाह उम्मे हानी के साथ हो जाए। तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने क्या जवाब दिया, ये बात जहन में रख लीजिए। नबी अगर किसी के साथ निकाह करना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहते तो मर्जी नबी की नहीं चलती, मर्जी अल्लाह रब्बुल इज्जत की चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरख्त के फल के करीब जाते हैं, जाने का मकसद क्या है, मैं इसके करीब जाऊंगा, हमेशा हमेशा जन्नत के अंदर रहना चाहता हूं, हमेशा जन्नत में रहूंगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम को हमेशा जन्नत में नहीं रखना चाहते, जमीन पे भेजना चाहते हैं और जमीन पे खिलाफत देना चाहते हैं। अब आदम चाहता है मैं हमेशा हमेशा जन्नत में रहूं, और अल्लाह नहीं चाहते, मर्जी आदम की नहीं चलती, मर्जी अल्लाह रब्बुल इज्जत की चलती है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में सवार होते हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कश्ती में सवार हो जाओ, जो कश्ती में आएगा वो तूफान से बच जाएगा, जो कश्ती में नहीं आएगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कश्ती के अंदर सवार हुए, अपने बेटे को बुलाते हैं, कश्ती के अंदर सवार हो जा। बेटा क्या कहते हैं कि मैं कश्ती में सवार होने के लिए तैयार नहीं हूं। अब हजरत नूह चाहते हैं मेरा बेटा बच जाए, अल्लाह नहीं चाहते, अल्लाह उसे तूफान के अंदर डबोना चाहते हैं। तो मर्जी नबी की नहीं चली, मर्जी मेरे रब की चली है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, इब्राहिम इस्माइल के गले पर छुरी चलाते हैं, मकसद यह है कि छुरी चल जाए, कुर्बानी कबूल हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं छुरी ना चले, बगैर छुरी चलाए मैं कुर्बानी को कबूल करना चाहता हूं। तो मर्जी इब्राहिम की नहीं चली, मर्जी मेरे रब की चलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा शहद इस्तेमाल किया, शहद की महक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को पसंद ना आई, तो कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी महक खुशबू अजीब है, आप इसको इस्तेमाल ना करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठा ली आज के बाद मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत जिब्रील अमीन को देकर भेजी, फरमाया जिब्रील जा मेरे महबूब को कह दे या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक। ऐ मेरे महबूब जिस चीज को मैंने हलाल किया है आप अपनी बीवियों को खुश करने के लिए, उनको राजी रखने के लिए आप उसको हराम कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम तोड़कर शहद को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मर्जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं चली, मर्जी अल्लाह की चलती है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं अल्लाह का नबी ये चाहता है मेरा निकाह उम्मे हानी के साथ हो जाए, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता, तो मर्जी आपकी नहीं चलती, मर्जी आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की चलती है। तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने क्या जवाब दिया, फरमाया ऐ मेरे भतीजे देखो हमारी कौम कबीले के अंदर ये चीज इंतहाई मायूब समझी जाती है। मैंने आपको बचपन में पाला, मैंने आपकी किफालत की है, आपकी देखभाल की है, मेरी आंखों के सामने आप जवान हुए। आज अगर मैंने अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दी तो उस वक्त कुरैशी सरदार मक्का के कहेंगे कि ऐ जनाब अबू तालिब आप कैसे आदमी हैं कि अपने घर के अंदर पालकर बेटा बनाकर अपनी बेटी इनके हवाले कर दी है, यह हमारे यहाँ मायूब है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकाह का पैगाम भिजवाया। मैंने कहा तिजारती हालात सैयदा खदीजतुल कुबरा के सामने थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ मोहम्मद मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह की तरफ से भी फैसला हो चुका था कि मेरा महबूब इनके साथ निकाह करे और माली तौर पर खदीजा इनकी खिदमत करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नबुव्वत का ऐलान करेंगे तो उम्र रसीदा खातून की जरूरत है कि जिस वक्त मैं जिब्रील को भेजूंगा गारे हिरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अमीन वही लेकर आएगा।